painful. बलिदान करना दुख देता है. That's why many people don't understand this. That कई लोग जो आज जी रहे हैं जहां हैं, सालों से वो जो वचन बोलते आए हैं, जो बीज बोते आए हैं, उसका ही फसल वो खा रहे हैं. वही कद्दू और टिंडे वो खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहते. The life that many people are. टिंडे मुझे बहुत पसंद है. कद्दू The क्या life बनते हैं हमारे that घर में टिंडे, बट पर आप उदाहरण समझिए. the life that many people are living is because of the seed they have been sowing all throughout in their life. See, we think it's devil, but we don't understand that it's the words we have been saying. हमें लगता है शैतान की वजह से, लेकिन हम नहीं समझते कि वो हमारे शब्दों की वजह से जो हम बोलते हैं. So many believers are depressed today. I'm not talking about the world. The world is so depressed. But so many believers are depressed because they are hearing themselves rather than talking to themselves. बहुत से विश्वासी डिप्रेस्ड हैं. आज मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ. विश्वासी डिप्रेस्ड हैं क्योंकि वो अपने आप को सुन रहे हैं अपने आप से बोलने की जगह. लोग बोलेंगे जो अपने से बात करता है वो पागल है. नहीं, विश्वास के लोग अपने से बात करते हैं. People will say he who speaks to himself is mad, but no, people of faith speak to themselves. अपने से बात करना शुरू करो. Begin to speak to yourself. कई लोग ना वचन लेके सबको प्रचार करना चाहते. पहले वचन से अपने को प्रचार करो. Take the word and preach it to yourself. Some people take the word and start preaching to others. पहले वचन लो, अपने आप से प्रचार करो. Talk to yourself. अपने आप से बात करो. Tell yourself. कहो अपने आप से. I am born of God. मैं परमेश्वर से पैदा हूँ. Oh, I am called to overcome the world. मैं दुनिया पे जय पाने I am a victorious champion. मैं एक जयवंत योद्धा I हूँ. am bought with the precious blood of Lord Jesus Christ of Nazareth. से खरीदा गया हूँ. Amen. आपको अपने से बोलना बहुत जरूरी है. You have to speak to yourself. Because hear this. जो आप अपने से कहते रहते हो ना, what you keep telling yourself, that becomes your software. वो आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है. And then the enemy bombards you with thought. कोई मुझसे प्यार नहीं करता, 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 कोई मुझसे प्यार. वही चलता रहता अंदर. और फिर दुश्मन आपको विचार देता है, no one loves me, no one loves me, no one loves me, and that's what you keep thinking. And then what happens? क्या होता है? I'm telling you, I've been in the presence of such people. You try to love them, and there is an invisible repelling force that will repel you back. And it becomes so difficult to love these people because they have said it so many times over themselves that they are now eating the fruit of it. And you try to love these people. आप इन लोगों से प्यार करने की कोशिश करते तो ऐसा आपको धक्का महसूस होता है क्योंकि उन्होंने बोल के अपने जीवन में ऐसा बना दिया कि वो उसका फल खा रहे हैं. Put Proverbs 6:2. नीति वचन 6 उसका 2. आज देखते हैं कौन है वो व्यक्ति जिसने फंदा लगाया आपके जीवन में. Let us see. आज तो पकड़ा जाएगा वो व्यक्ति. Who is that person that has set a trap? जो रिस्पॉन्सिबल है आपके फंदे के लिए, आज वो पकड़ा जाएगा इस जगह. Let's catch the person responsible for setting a trap. Come on, let's catch that person who is responsible for this. आइए पकड़ते हैं उसको जो जिम्मेदार. ओह, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा है. You are snared by the words of your own mouth. ओह हालेलुया, पकड़ा गया ये बंदा आज. You're caught. ऐसे करो उंगली, ऐसे करो, ऐसे. बस यही बंदा दिक्कत है. That's the guy. That's the person. ये ठीक हो जाए तो आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी. If this is corrected, everything will be good. फर्क नहीं है दूसरे क्या बोल रहे हैं. Doesn't matter what others saying. मगर ये फिर से कैसे करो, बोलो ये बंदे के शब्द बदल गए. Say if this guy's words तो फिर सब बदल जाएगा. Everything will change. You are not taken captive by the words of others' mouth. You are taken captive by the words of your own mouth. आप दूसरों के शब्दों के द्वारा बंदी नहीं बनते, अपने खुद के शब्दों के कारण फंदे में फंसते हैं. And can I tell you, for so many people, बहुत से लोगों के लिए what you are saying, आप जो कह रहे हो, is nullifying what you are praying. जो आप प्रार्थना कर रहे हो उसको रद्द कर रहा है वो जो आप कह रहे हो. Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूं. And I'm not saying that all of us are learning right now. हम में से कोई perfect नहीं है, कोई मैं सिद्ध नहीं, मेरे सब सिद्ध नहीं है, मैं भी चूक जाता हूं. हम सब सीख रहे हैं. हम सब एक परिवार की तरह बढ़ रहे हैं जहां पे हम वो ना बोले जो हमारे विरोध में कार्य करें. We all are learning as a family that we will not speak that which will work against us. Amen. Amen. कई लोग ये बोलेंगे
प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा। सो दे आर प्रेइंग गॉड आई बिलीव इट, दे आर प्रेइंग। मैं फिर बात करें, हाँ पता है, अरे ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर ने कहा। नाउ दे टॉक अबाउट इट फॉर 200 hours and they pray 2 hours. Tell me which will carry more authority? So their saying is nullifying their praying. उन्होंने 2 घंटे प्रार्थना किया, कहा प्रभु मैं चंगा कर दो, मैं मानता हूँ ये यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, लेकिन फिर 20 घंटा बात करते हैं कि ये कैसे, डॉक्टर ने कहा है लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। जो वो बोल रहे हैं उससे उनकी प्रार्थना रद्द हो गई है। Because prayer is nothing but words. क्योंकि प्रार्थना शब्द है और कुछ नहीं है। कई लोगों को लगता है आज की वर्ड्स तो मैं आई डिडंट मीन इट, मैं तो बोल दिया, मैंने तो ऐसे ही कहा था। No. नहीं, Words are spiritual force in the spirit realm. शब्द आत्मिक दुनिया में एक ताकत है। फिर से लगाओ Proverbs 6:2। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा You गया। are snared by the words of your mouth and you are taken by the words of your mouth. पेट में दर्द हुआ, अरे अपेंडिक्स का तो दर्द नहीं है ये। दुष्ट आत्मा ने सुना, कह रहा वाह रेड कारपेट, आजा भाई अपेंडिक्स वाले डीमन आजा। A little This sound- guy has opened up. इस व्यक्ति ने खोल दिया अपने जीवन को। When you read Psalm 91, what is that? दाऊद कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। दाऊद मुंह खोल के बोल रहा है जो विश्वास करता है। David is saying, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. He is the Lord in whom I will trust. He will save me from the fowler's nest. This is what David is saying, that I believe this about God. कई लोग इस बात को आज नहीं समझते, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे शब्द जो कंट्रोल नहीं है। Many people don't understand this is the biggest problem of our life, our uncontrolled words. वो शब्द जो हमारे विरोध में दुष्ट आत्माएं इस्तेमाल करती हैं। The words that demons use against us. Words are very very powerful. शब्द बहुत ही शक्तिशाली हैं। Luke 17, let's see 5 to 6. लूका 17, 5 और 6। And the apostles said to the Lord, increase our faith. तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, Increase our हमारा विश्वास faith. बढ़ा। So the Lord said, प्रभु ने कहा if you have faith as a mustard seed, यदि तुम में राय के दाने के बराबर विश्वास you हो, can say to this mulberry tree. तो तुम शहतूत के पेड़ से कहते। If you have faith, अगर विश्वास होता, you will say. That's how the original translation says. If you have faith, अगर विश्वास है you will say. तो कहोगे। जो आप कह रहे हो What you are saying, वही आपका विश्वास है, that is what you वो are नहीं जो आप कलीसिया में घोषणाएं करते हो। Not the declarations you do in church.